हाय एवरीवन, हाउ आर यू? सब फाइन है? सब ठीक है आप लोग? ओके, तो आज क्या डिस्कस करना था हम लोगों को? अच्छा, SN2 रिएक्शन है. ओके, सो इन द लास्ट क्लास we were discussing about the SN2 reaction. So today we will proceed further, right? ठीक है. तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग. नेक्स्ट पॉइंट तो लिखे. नेक्स्ट पॉइंट, SN2 रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव. SN2 रिएक्शन ये क्या होता है? SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, राइट? SN2 रिएक्शन बोथ स्टीरियो स्पेसिफिक एज वेल एज स्टीरियो सेलेक्टिव भी होता है, राइट? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक? स्टीरियो स्पेसिफिक मीन्स राइट, लिखिए आप लोग. स्टीरियो स्पेसिफिक मीन्स द रिएक्शन इन विच स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट. द रिएक्शन इन विच स्पेसिफिक प्रोडक्ट form as a major product, it is known as stereo specific reaction, right? And what is the meaning of stereo selective? तो यहाँ पर नोट डाउन करिए. स्टीरियो सेलेक्टिव में the reaction in which more than one product is formed and one product select as a major product, and one product is select as a major product. It means that in the stereo selective reaction more than one product will form. Out of them one product will be considered as major product. Okay, now example हम लोग consider करते हैं stereo selective में. stereo selective यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल है. लेट्स से दिस इज H एंड दिस इज Cl, दिस इज CH3 एंड दिस इज C2H5, राइट? लेट्स से दिस इज OH माइनस एंड दिस रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म. जो एनायन के प्रेजेंस में ये SN2 मैकेनिज्म को ही फॉलो करता है, और इन केस ऑफ लोन पेयर कंटेनिंग स्पेसिस इट विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म. लोन नेगेटिव चार्ज आयन के केस में एनायन के प्रेजेंस में ये SN2 मैकेनिज्म ही फॉलो करेगा, और वी विल गेट इन्वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट. CH3 C2H5 and we will get OH over here. Okay, now look at here. Let's say the configuration of this, because this carbon is chiral carbon, this is chiral carbon, and the molecule is chiral molecule, right? Now what is the configuration of this molecule? For this we can find out by applying Kahn, Ingold and Prelog sequence rule. This is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. And what we will do, we will move from 1 to 3rd via second by ignoring the 4th priority in our group. 1 to 3rd we will move 1 to 3rd via second. In this course, if the clockwise rotation and lowest priority group is at horizontal position, then we will follow this technique SCS, horizontal lowest priority group at horizontal and the direction of rotation is clockwise, then we will get S configuration. If not then we will get R configuration. But over here the direction of rotation from 1 to 3rd is clockwise and the 4th priority atom or group is at
horizontal position, that's why the configuration of this molecule is S. Right? This is S configuration. And over here we will get R configuration. Check here, this is 1, this is 4, this is 2, and this is 3. So 1 to 3rd via second. In this course, the lowest priority atom or group is at horizontal position. Since it is anti-clockwise, that is why the configuration will be R. So over here, in the reactant or substrate, the configuration was S, but in the product we get configuration R. So we will write over here, this is Walden inversion. Walden inversion, right? This product will obtain and this will be our major product. So this reaction is known as stereospecific. Okay? I hope कि आप लोगों को समझ में आया. इस SN2 reaction is stereospecific means specific product it will form and that will be our major product, right? And stereoselective means more than one product will form and out of them one will be selected as a major product. Okay? Then note करिए इसको. Okay, done. एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग यहाँ पर. Let's say this is H or this is CH3 and this is Cl, this is let's say C2H5, right? Over here OCH3 minus in presence of DMSO, it will follow SN2 mechanism, right? SN2 mechanism, and we will get the product over here. This is hydrogen, this is CH3, this CH3, right? And over here, what will happen? C2H5 will come down side and OCH3 will take the upper position. ठीक है? Upside. That is basically what happened. Inversion takes place. So we get inversion product. Inversion product. Right? It may be represented as, because this carbon is sp3 carbon, so we may represent it as this molecule over here. This is hydrogen, this is CH3, let's say this is C2H5 and this one is chlorine, and on treating with the same reagent in presence of same solvent, SN2 mechanism will follow over here, and we will get the product HCH3, and basically what will happen, flipping will take place, inversion will take place. So C2H5 was at the weight or dash position, so it will come at weight position C2H5, and over here we will get OCH3. That is why it is inversion product, right? Okay? Basically क्या हुआ? Inversion हुआ, right? But अगर substrate में अगर chiral carbon है, chiral center है, तो we will get Walden inversion. अगर substrate में chiral center नहीं है, तो we will write inversion product, right? यहाँ बेसिकली ये कार्बन में कायरल कार्बन नहीं है, राइट? बिकॉज कायरल कार्बन के लिए ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं, द कार्बन विच इज अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप. बट ओवर हियर दिस इज CH2, C2H5 and this is Cl, but over here there is no difference. That is why this carbon is not chiral carbon. That's why we can say we will get inversion product. Okay? Okay, note it down. Do it fast.
Done? Okay. Now अब हेडिंग दीजिए SN2 reaction and internal nucleophile. SN2 reaction and internal nucleophile. Give the heading SN2 reaction and internal nucleophile. I think I was discussing this topic ना, but it was not completed yesterday. Okay, फिर से देखते हैं आज. Wait a minute. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे हम एक सबस्ट्रेट कंसीडर करते हैं. लेट अस कंसीडर दिस रिएक्टेंट. Okay, and we treated this reactants with methoxide ion in presence of dimethyl sulfoxide. So it will give SN2 reaction, and we may get two type of product. One, what will happen? The first product, this chlorine will remove and OCH3 will attach over here. So the first product we may write over here. This is OH. This is cyclohexane, and over here OCH3 will be added, right? In the second case, what will happen? This OCH3 or CH3 methoxide ion is a negatively charged species. Here it may act as a nucleophile or as a base. If it acts as a nucleophile, it will attack on the electron deficient center or carbon. But if it acts as a base, it will abstract acidic hydrogen and perform acid-base reaction. Here hydrogen is attached with oxygen, and we noted one thing. If hydrogen is attached with most electronegative atom like oxygen, nitrogen, sulfur, and C triple bond C, sp hybridized carbon. In all these cases, hydrogen is acidic hydrogen, right? So in this system we have acidic hydrogen. So what will happen? CH3 will abstract this hydrogen, and we will get what? This nucleophile. Okay, negative charge over this oxygen. Now what will happen? Since this ring, both rings are connected by a single bond, so about the single bond there is free rotation possible. So what will happen? It will happen like this. This is benzene ring, this is O minus, and ring will be rotated like this, and Cl minus will come over here, right? Now this carbon will have positive charge, and this carbon will have partial negative charge. Since this oxygen have negative charge, so it will act as a nucleophile over here, and here oxygen will attack over this carbon, and we will get substituted product. This is our major product. Here, look at here O minus ion itself act as a nucleophile, so it was a part of the system. That's why it is considered as internal nucleophile. SN2 reactions and internal nucleophile. Over here, the negative charge of the system itself act as a nucleophile, and we get the substituted product, right? So this is our major product. So in the
if in the system there is a negative charge or nucleophile, we have to consider it, right? Okay, note it down. ओके, अब यहाँ पर आपके पास 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ब्लैक बोर्ड में और इस क्वेश्चन को आप सोल्व करिए, राइट? देखिए यहाँ पे और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेरा क्या है, मिथोक्साइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ SN2 इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन इट विल परफॉर्म SN2 रिएक्शन, ठीक है? नाउ the methoxide ion may act as a base or may act as a nucleophile, right? In the system there is acidic hydrogen. So what will happen, the methoxide ion will abstract this hydrogen and it will form this product. Now this negative charge over oxygen, that is this molecule itself acts as a base or nucleophile. Now this carbon have partial positive charge and this bromine is partial negative charge. So negative oxygen will act as a nucleophile over here and attack over this carbon and we will get substituted product. Oh sorry, will get substituted product. Okay, but what will happen, D and H, here also inversion will take place, right? Sorry. So hydrogen will come over here and deuterium will come over here, ठीक है? The same thing over here, OH minus will act as a base over here, abstract hydrogen, the negative charge come over here. Now negative charge will attack over this carbon because this carbon will have positive charge and this carbon will have negative charge. So we will get the product let's say 1 2 3 4 5. So 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Okay, so we will get this product. Cyclization will take place. इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, right? We will get this product. यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर भी SN2 मैकेनिज्म, यहाँ पर भी SN2 मैकेनिज्म होगा आपका, ठीक है? SN2 मैकेनिज्म होगा, फाइनली विल गेट इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, राइट? यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर PH है फिनाइल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ड्यूटेरियम है और बेसिकली यहाँ पर इन्वर्जन होगा और OCH3 यहाँ पर मिलेगा आपका इन्वर्जन, बेसिकली आपको इन्वर्जन टेक्स प्लेस, ठीक है? What will happen over here? What will happen over here? This reaction will also follow SN2 mechanism, ठीक है? SN2 ही follow करेगा ना, ठीक? तो what will happen? Basically this is C2H5 ना, this is CH3, this is hydrogen, and OH will be added over here, and basically inversion will take place. We will get inversion product, ठीक है? यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा. यहाँ पर आप देखिए इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पे रहेगा, बट यहाँ इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पर भी है, इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन वो कैरी फॉरवर्ड होगा,
सेम रहेगा आपका, सेम रहेगा तो का कॉन्फ़िगरेशन, बट यहाँ पे इस कार्बन का क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा आपका ना, ठीक है। ओके, नोट वेरी फास्ट। ठीक है, हो गया। एक यहां पे और एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका रिएक्शन हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया, ए बना, ए का रिएक्शन हम PHCH2Cl से कराया, बी बना। तो रिकॉग्नाइज करिए व्हाट इज द ए एंड बी इन दिस रिएक्शन। ए एंड बी क्या होगा, इसको फाइंड आउट करिए, बनाइए फास्ट। देखिए यहां पर जो KOH है, ये K प्लस OH माइनस आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज OH माइनस आयन विल एक्ट एज एन बेस। और यहां पर अभी मैंने बताया कि अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, सल्फर से जुड़ा हुआ है और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 3.25 होता है ना, तो इस सारे केस में जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक होगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन परफॉर्म करेगा, बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन, और हमें बनाएगा पहले एनायन। तो ए बनेगा आपका ये प्रोडक्ट, ए विल बी दिस इज द ए, ये आपका ए प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पर ये ए है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, ये या तो बेस की तरफ बिहेव कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर सकता है। यहाँ पर आपके पास सबस्ट्रेट है PH, लेट्स से PH CH2Cl, यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव अटैक यहाँ पे करेगा और फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा B। तो B मेरा ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। और यहां से मेरा CH2PH ऐड हो जाएगा, तो ये मेरा B बनेगा आपका, ठीक है। तो A और B ये दोनों मेरा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना सबको समझ में? ओके, नोट इट डाउन। ठीक है, डन हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच फॉलो SN2 मैकेनिज्म। कुछ रिएक्शंस है जिसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है या SN1 मैकेनिज्म भी फॉलो होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे ना। तो सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच फॉलो SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन। तो सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले देखिए विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर या विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ओह, आई थिंक इंक खत्म हो गया ना। ओके, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसमें देखते हैं, इसमें क्या है,
अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम अल्कोक्साइड RO Na प्लस, सोडियम अल्कोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम अल्कोक्साइड, तो हमें मिलेगा आपका ईथर या मिलेगा हमें अल्कीन प्लस मिलेगा HX। अगर ये ईथर मिलता है हमें, लेट्स से यहां पे हमें ईथर मिला, ये SN2 को फॉलो करेगा, और अगर हमें अल्कीन मिलता है तो हमें ये E2 रिएक्शन को फॉलो करेगा। अभी हम ये SN2 वाले को देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि Rx अगर मेरा 1 डिग्री है और 2 डिग्री, 1 डिग्री है, Rx मेरा 1 डिग्री है, प्लस अल्कोक्साइड आयन जो है मेरा, अल्कोक्साइड आयन है, ये 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, इस केस में always it will follow SN2 mechanism and we will get ether as a major product, ईथर मिलने वाला है हमें, ठीक है। अगर अल्काइल हैलाइड मेरा 3 डिग्री है और अल्कोक्साइड आयन मेरा कुछ भी हो, आइदर 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और मेजर प्रोडक्ट मेरा होगा अल्कीन। बट अगर अल्काइल हैलाइड मेरा 2 डिग्री है, यहां पर कंडीशन, 2 कंडीशन आएगा मेरा, अल्कोक्साइड आयन अगर 3 डिग्री है तो डेफिनेटली ये अल्कीन मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा और मैकेनिज्म E2 फॉलो करेगा मेरा। बट अगर अल्कोक्साइड आयन 1 डिग्री है या 2 डिग्री है तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और ईथर मेरा प्रोडक्ट बनाएगा, ईथर, ठीक है। पहले इसको नोट करिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल में इसको समझते हैं, राइट। डन। अब यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं ना, देखिए यहां पर पहला एग्जाम्पल है, अगर यहां पर मेरा मिथाइल क्लोराइड है और हमने यूज किया CH3 सोडियम मिथोक्साइड आयन, तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और बैक साइड अटैक करेगा इस अल्काइल ग्रुप के कार्बन पर, और हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट, साथ में NaCl मिलेगा। ये है डाइमिथाइल ईथर या मिथोक्सीमीथेन। अगर मेरे पास अल्काइल हैलाइड ये है और सोडियम अल्कोक्साइड लेते हैं, मिथोक्साइड आयन ले लिया हमने, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा ये मिथोक्सी ईथेन। तीसरा है, अगर अल्काइल हैलाइड मेरा 2 डिग्री है और हमने सोडियम इथोक्साइड आयन यूज किया है, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा CH3CHO CH2CH3, ठीक है। इथोक्सीप्रोपेन, 2 इथोक्सीप्रोपेन, इसका नाम है 1 2 3 2 इथोक्सीप्रोपेन। यहीं पर अगर CH3CH CH3Cl और हमने यूज कर लिया लेट से ये टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन है, टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन,
ये आपको E2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा आपका अल्कीन। ठीक है, चौथा रिएक्शन है, पांचवा रिएक्शन है आपका, अगर अल्काइल हैलाइड में टर्सरी है 3 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और मिथाइल हैलाइड, और यहाँ पे मेरा लेट से ब्रोमीन है, और प्लस हमने ले लिया आपका CH3 CH2O Na+, ये आपको E2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, E2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा आपका, और ये प्रोडक्ट बनाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये भी अल्कीन बनाएगा आपका। ठीक है, नोट करिए इसको, डू इट फास्ट। ठीक है, डन। अब लीजिए रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। नेक्स्ट लिखे रिएक्शन विथ अमोनिया। है ना, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। देखिए ये अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करते हैं और अमोनिया एक्सेस मोड में लेंगे हम। ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और बनाएगा अमाइन। ठीक है, अमाइन बनाएगा। ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है तो ये अमाइन बनाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर अल्काइल हैलाइड मेरा 3 डिग्री है और इसको अमोनिया एक्सेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया एक्सेस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और अल्कीन मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। राइट, ठीक है, नोट करिए इसको। ओके, अब देखिए एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ये है आपका मिथाइल हैलाइड, लेट्स से मिथाइल क्लोराइड, और यहाँ पर हम अमोनिया से रिएक्शन करते हैं। ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा आपका एंड प्रोडक्ट विल बी CH3NH2 मिथाइल एमीन एंड प्लस HCl विल बी रिलीज। ठीक है, लेट्स से दिस इज CH3 CH2 Cl plus NH3 and it is in excess, it will follow SN2 mechanism and we will get CH3 CH2 and NH2 ethyl amine। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हम यूज करते हैं CH3 लेट्स से क्लोरीन प्लस NH3 in excess SN2 मैकेनिज्म। तो क्या बनेगा मेरा, यहाँ पर बनेगा आपका CH3 CH3 और NH2 और प्लस क्या HCl बाहर निकल जाएगा। राइट, HCl हट के बाहर निकल जाएगा। बट यहीं पर अगर आपके पास मेरे पास रिएक्टेंट अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पर अमोनिया एक्सेस के साथ रिएक्शन किए हम, तो ये SN2 के अलावा बल्कि SN2 के बदले E2 को फॉलो करेगा आपका और अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, नोट इट डाउन। यहां पर अगर आप अमोनिया एक्सेस की जगह में हम अल्काइल हैलाइड एक्सेस लेंगे तो आपको क्वाटरनरी अमाइन बनाएगा। अगर आप लेट से यही रिएक्शन लिए और ये एक्सेस में लेते हैं, आप एक्सेस में लेते हैं आप और अमोनिया से इसका रिएक्शन कराते हैं
तो आपको ये SN2 मैकेनिज्म ही फॉलो करेगा, बट आपको क्या होगा, ये पहले प्राइमरी एमाइन बनाएगा, फिर से आपको अल्काइल हैलाइड है तो आपके पास ये दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा, फिर से अल्काइल हैलाइड है आपके पास, ये तीसरा प्रोडक्ट बनाएगा आपका, फिर से इसमें अगर अल्काइल हैलाइड डालेंगे आप तो आपको क्वाटरनरी एमाइन बनाएगा। ठीक है, डन, ओके, नोट इट डाउन। हो गया, ठीक है। अब लिखे रिएक्शन विथ सोडियम अल्काइनाइड आयन, अल्काइनाइड आयन, रिएक्शन विथ सोडियम अल्काइनाइड आयन लिखे हम लोग, सोडियम अल्काइनाइड आयन। देखिए यहां पर क्या है, अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम अल्काइनाइड आयन, इससे हमें अगर ये 1 डिग्री है और 2 डिग्री है तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और प्रोडक्ट लेट से जैसे R डैश, तो वी विल गेट RC ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड R डैश, राइट। यहाँ पर अगर CH3Cl है प्लस यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा आपका C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। ठीक है, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। एक रिएक्शन ये CH3 CH2 Cl है और लेट से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा आपका और प्रोडक्ट विल बी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, बट अगर ये अल्काइल हैलाइड मेरा टर्सरी है, 3 डिग्री है, अगर CH3 Cl और इसका रिएक्शन करते हैं हम C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस सोडियम अल्काइनाइड आयन के साथ, ये एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा और वी विल गेट अल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, नोट इट डाउन, डू फास्ट। ठीक है, डन, ओके। अब एक कन्वर्जन करते हैं हम लोग, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये है CH3 CH2 Cl, इसका रिएक्शन हम KCl के साथ करते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CH3 CH2 Cl। ठीक है, बनेगा, SN2 मेथड को फॉलो करेगा आपका KCl ना, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को, ये 1 डिग्री है तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा आपको और ये क्या बनेगा, साइनाइड। अब इस साइनाइड का डिफरेंट रिएक्शन देखते हैं। इस साइनाइड का अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस H3O प्लस या H2O H प्लस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। इसी साइनाइड का अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दैट इज H2O H प्लस, और इसका हम रिडक्शन करते हैं
रिडक्शन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रिडक्शन करते हैं यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं H2PT और H2PD, और वी कैन राइट H2PT, H2PD, H2 निकल और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, राइट। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है, साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, एंड ऑन रिडक्शन विल गेट अमाइन, साइनाइड टू अमाइन, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, साइनाइड से अमाइड पार्शियल हाइड्रोलिसिस, साइनाइड से एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली ये अल्काइल ग्रुप है, ये रिमेन सेम, और इसमें कन्वर्जन होगा तो विल गेट CH3 CH2 और CONH2, तो नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम। यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 1 2 3 कार्बन ही है। सिमिलरली यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी 3 कार्बन ही है, नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम इन द प्रोडक्ट, सेम एज रिएक्टेंट। और यह पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CH3 CH2 CH2 NH2, यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन क्या रहेगा, सेम, राइट। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, बेसिकली क्या कैसे होता है ये, इसको देखिए, ये CH3 है, CH2 और ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है। बेसिकली पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस मींस वाटर से एडिशन, H प्लस और OH माइनस का बेसिकली एडिशन होगा, ठीक है। ये पाई बॉन्ड है, ये टूटेगा आपका, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जो आपका वाटर का 2 आयन बना है, आपका नेगेटिव और पॉजिटिव आयन, ये अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, सो OH विल बी अट्रैक्टेड ओवर द कार्बन। सो एक कार्बन मेरा यहाँ से, एक बॉन्ड ये टूटेगा आपका, एक OH यहाँ ऐड होगा, एक बॉन्ड ये नीचे वाला टूटेगा, OH यहाँ पर ऐड होगा। सिमिलरली एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा। तो फाइनली अब यहाँ पर देखिए, तो ये दोनों बॉन्ड खत्म हो गए, आपका पाई बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड नहीं बचा है आपका। अब एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है और ये वाटर को रिलीज करेगा, यहाँ से वाटर बाहर आएगा सिस्टम से, एंड वी विल गेट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, अमाइड बन गया आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पहला तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बन ही चुका है आपका, अमाइड तो बन ही चुका है। अब यहाँ से फिर फर्दर क्या होगा, यहाँ से H ऐड होगा, यहाँ से OH ऐड होगा आपका, ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपका, तो फाइनली वी विल गेट दिस प्रोडक्ट एसिड। बट यहाँ पर क्या होगा, साइनाइड के केस में ये CH3 है, दिस इज CH2 एंड दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N। फिर सिमिलर कॉन्सेप्ट हियर, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, इट इज पाई बॉन्ड, राइट। रिडक्शन मींस बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल ऐड, है ना। तो यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा आपका, बिकॉज पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा आपका, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होना है, ये पाई बॉन्ड फिनिश्ड हो गया आपका। एक नीचे पाई बॉन्ड ये ब्रेक होगा आपका, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होना है, तो फाइनली हम लोग क्या मिलेगा, ये अमाइन। देखो CH3 CH2 फिर CH2 और NH2, ठीक है, अमाइन। तो ये इसका मैकेनिज्म है ना, इसको नोट करिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, हो गया, डन। अब दीजिए हेडिंग एम्बिडेंट निक्लोफाइड। एम्बिडेंट निक्लोफाइड
एम्बिडेंट मतलब होता है कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल या ऐसा एलिमेंट, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो डोनर सेंटर हो या जहाँ पर दो डोनर एटम हो, दैट इज एम्बिडेंट होगा। यहाँ पर देखिए हमने लिया CH3 CH2, लेट्स से दिस इज Br, और इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग KCN से और AgCN से। यहाँ पर जो KCN ये आयोनिक कंपाउंड है, इसका नेचर आयोनिक है, ये कंप्लीटली ब्रेक करेगा K प्लस और Cn माइनस में। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन अटैक करेगा इस कार्बन पर और हमको क्या मिलेगा, कार्बन अटैक करेगा इस कार्बन पर, बैक साइड अटैक करेगा SN2 मैकेनिज्म से, हमें क्या मिलेगा CH3 CH2 और Cn बनेगा हमें, ठीक है, दैट इज साइनाइड। यहां पर AgCN है, ये मोर कोवैलेंट होता है, कोवैलेंट इन नेचर। तो यहां पर नाइट्रोजन लोन पेयर है, ये डोनेटिंग का काम करेगा, ये अटैक करेगा आपका और हमें मिलेगा CH3 CH2 and C ट्रिपल आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड। अब यहां पर आइसोसाइनाइड का फिर से हम क्या करते हैं, दो मैकेनिज्म देखते हैं, हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन। हाइड्रोलिसिस देखते हैं इसका, H2OH प्लस हाइड्रोलिसिस। आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे आप तो आपको नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा और प्रोडक्ट बनेगा अमाइन प्लस एसिड, और यहां पर से इसका रिडक्शन करेंगे आपका सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रोसेस रिडक्शन होगा आपका, तो हमें मिलने वाला है क्या, CH3 CH2 NH और CH3, यहाँ 2 डिग्री अमाइन मिलेगा हमें, राइट। बेसिकली मैकेनिज्म इसका क्या है, इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, ये होता किस तरह से है। बेसिकली यहाँ पर हम सिंपल R लिए, यहाँ पर सॉरी ये N, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है, नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन है ना, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करते हैं ना, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड को तोड़िए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करिए, तो इसका ये मैकेनिज्म था। आया समझ में, नहीं आया, फिर से देखिए एक बार। लेट्स से दिस इज R, ये N है, डबल बॉन्ड C और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है आपका। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को देके बॉन्डिंग किया, ठीक है। तो हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं। अब एक यहाँ पाई बॉन्ड, इसको ब्रेक करिए आप, जब ब्रेक करेंगे एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करिए। सिमिलरली आपको इस आइसोसाइनाइड का रिडक्शन से 2 डिग्री अमाइन मिलने वाला, राइट, नोट करिए इसको। ठीक है, यहां पर देखिए, अब हमने यहां पे इसका दूसरा एम्पिरिकल न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराया है, NaNO2 और KNO2, और इसमें AgNO2 से रिएक्शन कराया है, ठीक है। ये फिर से K प्लस और NO2 माइनस में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, तो आपको ऑक्सीजन यहाँ पर डोनर एटम होगा इस केस में, और यहाँ पर ऑक्सीजन से बॉन्ड कार्बन अटैच होगा, ये नाइट्रीटो फॉर्म है, नाइट्रीटो, ठीक है।
और इस केस में ये मोर कोवैलेंट है, नाइट्रोजन डोनर होगा आपका और नाइट्रोजन इसमें अटैक करेगा, तो नाइट्रोजन से लिंक्ड होगा आपका CH3 CH2 NO2, ये नाइट्रो फॉर्म है आपका, ठीक है। अब अगर नाइट्रो का रिडक्शन करते हैं हम, नाइट्रो यहां से काफी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रो का रिडक्शन करेंगे हम तो हमें मिलेगा CH3 CH2 और NH2 अमाइन। नाइट्रो गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइन बाय यूजिंग, या तो आप SnHCl यूज करें या आप FeHCl यूज करें या आपको ZnHCl यूज करें या फिर आप यूज कर सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करिए आप, नाइट्रो ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू अमाइन, ठीक है, नोट करिए। डन। अब एक रिएक्शन में हेडिंग दीजिए डार्जन रिएक्शन, डार्जन नोट टार्जन, टार्जन नहीं है डार्जन ना, एक टार्जन फिल्म भी आया था ना जिसमें घोस्ट जो होता है वो बाइक वो कार राइड करता है ना, टार्जन, ये टार्जन नहीं है डार्जन, डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डार्जन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, अल्कोहल का रिएक्शन आप SOCl2 से करते हैं। ओह चल ही नहीं रहा, जस्ट वेट। ये थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन आप करेंगे तो आपको मिलेगा अल्काइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। इस रिएक्शन का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन देयर आर 3 प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, आउट ऑफ व्हिच 2 इज इन गैसियस फॉर्म ना, सो इट विल एस्केप आउट and we get the pure alkyl halide. So this is the best method to prepare alkyl halide, Darjan reaction, ठीक है। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है ये SNI मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SNI दैट इज इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। SNI रिएक्शन को फॉलो, मैकेनिज्म को फॉलो करता है और आपको रिटेंशन जो प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसका मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट नहीं है कोई खास, बट अगर मैकेनिज्म जानना चाहते तो देखिए होता क्या है, ये अल्कोहल है आपका और ये SOCl2 है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SOCl2। यहां से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस सल्फर को डोनेट करेगा और यहाँ पर पाइबोन ऑक्सीजन के ऊपर ओपन होगा, तो हम लोग क्या यहाँ से मिलेगा हमें OH प्लस और SO माइनस Cl एंड Cl। सेकेंड स्टेप में ये बॉन्ड यहाँ ओपन होगा और क्लोरीन बाहर निकलेगा नेगेटिव चार्ज लेके, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज लेके बाहर होगा यहाँ से इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, ये अपना बॉन्ड को रिस्टोर करेगा और ये क्लोरीन इस सेल को लेकर बाहर निकलेगा। फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, ROS डबल बॉन्ड OCl और साथ में मिलेगा HCl। नेक्स्ट में क्या होगा आपको, फिर से इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड यहाँ पर ओपन होगा और ये क्लोरीन अपना बॉन्ड पेयर लेके बाहर आएगा, क्योंकि क्लोरीन मेरा गुड लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर जैसे ये लोन पेयर आपको यहाँ पर सप्लाई करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर ओपन होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज R पर अल्काइल ग्रुप पर, और क्लोरीन से अटैच होकर हमें क्या मिलेगा आपको, RCl और प्लस यहाँ से क्या मिला SO2 और पहले तो हमने HCl मिलाई। तो इस रिएक्शन में जो इंटरनल जो न्यूक्लियोफाइल है इस सिस्टम के अंदर ही है,
दैट इज इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। ये मॉलिक्यूल के अंदर ही आपका ये न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है ना, ठीक है। अब यहां पर देखिए, एक हम इसको समझा रहे हैं आप लोगों को, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आपका रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। जो कॉन्फ़िगरेशन यहां पर है वही मिलेगा। एग्जांपल से देखते हैं हम, लेट्स से दिस इज, ये हाइड्रोजन है, ये आपका मिथाइल, ये आपका इथाइल, और यहाँ पर आपका OH ग्रुप है। और इसका रिएक्शन आप SOCl2 के साथ कर सकते हैं, थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, तो वी विल गेट व्हाट, C2H5, यहाँ पर क्लोरीन लगेगा आपका, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। आपका रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा आपको। जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है वही कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ मिलने वाला होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नोट कर लिए, ओके। अब यहां पर देखिए, अगर यहीं पर अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग SOCl2 के साथ कराते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो ये अब SNI रिएक्शन को फॉलो नहीं करेगा, SNI मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करके ये SL2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। यहाँ पर देखिए, लेट्स से दिस इज ROH अल्कोहल एंड वी रिएक्ट विथ SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, in presence of pyridine we will get RCl plus SO2 plus HCl, but over here we get inversion product। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर जो SaCl2 है, SOCl2, यहाँ पर नाइट्रोजन इज मोर बेसिक देन ऑक्सीजन ना, द लोन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई यहाँ पर सल्फर पर ये pyridine अपना नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके इससे बॉन्डिंग करेगा, और Cl2 यहाँ से न्यूक्लियोफाइल, जब न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा और ये यहाँ पर बैक साइड अटैक करेगा आपका, ठीक है। और फाइनली हमें ये इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लेट्स से यहाँ पर OH है और इसका रिएक्शन हम किए हैं SOCl2 और इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपको pyridine मिलेगा। यहाँ पर इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पर इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है, विल गेट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, that is why we will get Walden inversion product, ठीक है। ओके, नोट इट डाउन। नोट करिए, हो गया, ओके। अब हेडिंग दीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ईथर।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ईथर। हेडिंग दीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ईथर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ईथर। देखिए व्हाट विल हैपन ओवर हियर, यहां पर क्या होगा, आपके पास लेट से ये ईथर है, आपका ORO डैश ईथर है, इसका रिएक्शन आप एसिड के साथ कर रहे हैं, लेट से HBr के साथ कर रहे हैं, तो क्या होगा, HBr एसिड लिखना, एंड दिस ईथर, in this ether oxygen having lone pair of electron, so it will give its lone pair of electron to the hydrogen, and it will form OH plus Br minus, right? Now what will happen, the positive charge over oxygen is unstable, so either this bond may get split or this bond may get split. अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सा बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा, ये डिपेंड करेगा कि ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है आपका, ठीक है। अगर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, या आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है, तो ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ठीक है। अदरवाइज ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा इन केस ऑफ लेस हिंडर्ड, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ठीक है। अब यहां पर हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, या एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अब यहां पर गौर से देखें आप लोग, अब यहां से आप लोग जान चुके हैं कि SN1 रिएक्शन के थ्रू इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, सो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, राइट। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज मोर देन मिथाइल कार्बोकैटायन, और जो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है वो मोर स्टेबल होगा आपका, ठीक है। लेकिन SN2 मैकेनिज्म का जो रेट है वो स्टेरिक हिंडरेंस है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज व्हाई आप देखेंगे जो आपको मिथाइल है या 1 डिग्री हो वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे देखिए मैंने लिया CH3OCH3 और यहाँ पर HI, क्या बेसिकली यहाँ पर जो एसिड यूज करते हैं ये HI और HBr ही यूज करते हैं, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी काफी हाई होती है, और बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और HF और HCl हम लोग इसको यूज नहीं करते, HI और HBr को इस रिएक्शन में यूज करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ईथर और बॉन्ड क्लीवेज इन ईथर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर H+ आया, अटैक किया, बेसिकली यहाँ पर ऐसे देखिए दोनों सिमेट्रिकल सेम है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ H लीजिए एक तरफ OH लीजिए, और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करिए, इसको यहाँ से सॉरी यहाँ से ब्रेक करते हैं, यहाँ पर I रहेगा, यहाँ पर H रहेगा, और यहाँ से एक अल्काइल हैलाइड बनेगा आपका, एक अल्कोहल बनेगा, तो आपको CH3I प्लस CH3OH बनेगा। यहाँ पर बेसिकली SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करें, ठीक है। ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा नहीं, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप है वहां पर अल्काइल आयोडाइड का हैलाइड आयन का अटैक होगा आपका। दूसरा है आपका CH3 CH2O CH3, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका ये मिथाइल है और ये इथाइल 1 डिग्री है, और यहाँ पर आपको मैकेनिज्म क्या फॉलो होना है, लेट से HBr से रिएक्शन करते हैं, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर
ब्रोमीन यहाँ पर हाइड्रोजन और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये इसके साथ ऐड होगा आपका SN2 मैकेनिज्म में जो लोअर अल्काइल ग्रुप है उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा आपका, तो आपको मिलेगा CH3Br और प्लस और क्या मिलेगा आपको CH3CH2 इथाइल अल्कोहल। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये CH3CH3O CH2CH3 है, यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं लेट से, ये भी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा आपका, और यहाँ पर आयोडीन इधर है, हाइड्रोजन यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा आपको, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, आपको मिलेगा जो लोअर अल्काइल ग्रुप है ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। 1 डिग्री 2 डिग्री के केस में यहाँ पर देखिए 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज के केस में ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, जो लोअर अल्काइल ग्रुप है उसका हैलाइड बनेगा आपका CH3 CH2I बनेगा आपका, और आपको बनेगा ये CH3 CH3OH, ठीक है डन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इधर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अगर आपके पास ये है CH3O CH2CH3, इस केस में हम HI से रिएक्शन कराते हैं तो ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर अल्काइल हैलाइड जो है ये 1 डिग्री या 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री प्रेजेंट है इसलिए ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और आपके पास जो है इधर I है इधर H है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा आपका, और आपको बनेगा अल्काइल हैलाइड, I यहाँ से ऐड होगा और प्लस लोअर अल्काइल ग्रुप का आपको अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है इसको HI के साथ रिएक्शन करेंगे, ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, बिकॉज यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग लगा हुआ है, तो बेंजीन रिंग पर कार्बोकैटायन अगर बनाते हैं आप, ये एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है आपका ना, एरेनियम आयन हाईली अनस्टेबल, इसलिए ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और जब SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो लेस हिंडर्ड पे क्या बनेगा अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर देखें ये I है ये H है, ये बॉन्ड टूटेगा और आपको अल्काइल हैलाइड CH3I होगा बनेगा, प्लस दूसरा प्रोडक्ट फिनोल बनेगा आपका, ठीक है। अगर यहीं पर हम इसके जगह में आपका CH2O CH3 लेते हैं और यहाँ पर इसका रिएक्शन HBr के साथ फॉलो करते हैं, रिएक्शन करते हैं HBr के साथ, तो ये SN2 मैकेनिज्म को जगह में SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, बिकॉज यहाँ पर बेंजाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसीलिए जो ये पोर्शन है आपका ये I है आपका, ये H है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपका, और आपको ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH2I और CH3OH मिथाइल अल्कोहल, ठीक है डन। ये रिएक्शन ये क्वेश्चंस आपका नीट में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चंस AIEEE में जब AIEEE हुआ करता था ना उसमें पूछा हुआ AIEEE में, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी हो सकता है पूछा जाए, नीट पूछे इसमें, ठीक है। एक और एग्जांपल है
CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH 2O CH2 CH3 और इसका रिएक्शन हम HI के साथ कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए 1 डिग्री है और यहाँ पर भी ये 1 डिग्री है ना, लेकिन यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, एलाइलिक ग्रुप है ये एलाइलिक, तो ये रेजोनेंस बेसिकली रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा आपको बेसिकली ये बॉन्ड टूटेगा आपका और CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और अल्काइल आयोडाइड यहाँ ऐड होगा, प्लस आपको मिलेगा CH3 CH2 एंड इथाइल अल्कोहल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट इट डाउन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एम्स में पूछा हुआ आपका ये क्वेश्चन। इसका रिएक्शन हम HI से कर रहे हैं, तो बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट, डिसाइड करिए। देखिए ये बॉन्ड टूट नहीं सकता, अगर ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो यहाँ पर एरेनियम आयन बनेगा, बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज जो अनस्टेबल है, तो एक बॉन्ड यहाँ टूटेगा इसमें, और यहाँ पे अगर ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर CH2 मिलेगा जो बेंजाइल कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो यहाँ पर बेसिकली SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और इस स्टेप में SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वहाँ पर आयोडाइड आगे ऐड हो रहा है आपका, तो इस पोर्शन से क्या होगा CH2 I ऐड होगा आपका और इस पोर्शन से OH डन। और फाइनली क्या बनेगा आपका, यहाँ से OH ना, तो यहाँ पर CH2I यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका इस पोर्शन में I CH2, फिर यहाँ पर O और यहाँ पर क्या है OH, ये प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, नोट इट डाउन। और आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, डन, इसका हो गया। रिएक्शन विथ PCl5 PCl3 और रेड फॉस्फोरस प्लस X2, जहां पर X2 क्या क्लोरीन और ब्रोमीन, इससे रिएक्शन देखना है। सो रिएक्शन ऑफ PCl5 PCl3 क्लोरीन Cl2 Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। पहला है देखिए रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ PCl3 किस तरह से रिएक्ट करता है, PCl5 किस तरह से करता है और रेड फॉस्फोरस X2 किस तरह से करता है ना। बेसिकली कुछ करेगा नहीं, यहाँ पर जो अल्कोहल है ROH, इसका रिएक्शन अगर आप PCl5 से करेंगे तो आपको बनाएगा RCl प्लस बनाएगा POCl3 प्लस बनाएगा HCl। बेसिकली कैसे ये रिएक्शन करता है आपका, यहाँ पर देखिए PCl5 में PCl3 और Cl अलग रहेगा आपका, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए और ये बाकी का ऐड करिए इसमें, यहाँ से POCl3 बना RCl प्लस HCl बना, ठीक है। इसका एग्जाम लिखना जरूरत है क्या, सेम इसी तरह से होगा। बेसिकली कुछ नहीं, अल्कोहल का रिएक्शन अगर PCl3 हो या PCl5 हो या रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन हो तो आपको करना कुछ नहीं, OH हटा के Cl लगा देना, ठीक है। ये भी SN2 मैकेनिज्म को ही फॉलो करता है। जितना भी रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस का हम SN2 का ही डिस्कस करें, मैकेनिज्म को जो फॉलो करता है। अल्कोहल के जगह में आप ईथर लीजिए, ईथर में लेट से ROR डैश, इसका रिएक्शन आप PCl5 से करेंगे, क्या बनेगा
कुछ भी नहीं बनेगा, एक RCl बनेगा, दूसरा R-Cl बनेगा, फिर POCl3 बनेगा। यहाँ पर भी क्या है, PCl3 Cl2 ClCl ना, इससे PCl3 बनाइए, ये दोनों से RCl और उससे R-Cl, ठीक है। ईथर के जगह में आप ले लीजिए एस्टर। एस्टर लेंगे तो क्या बनेगा आपको, एस्टर लेंगे तो ये है एस्टर RC डबल बॉन्ड O R-। इसका रिएक्शन अगर आप PCl5 के साथ कराते हैं तो आपको वही बनेगा RCl प्लस R-Cl प्लस POCl3। देखिए किस तरह से होगा, ये PCl5 PCl3 है, Cl और Cl, तो यहाँ से PCl3 बनाएगा, ओके सॉरी, तो ये ROCl बनाएगा ना, ये R एसिड हैलाइड बनाएगा, RCOCl एक एसिड हैलाइड बनाएगा, एक हैलाइड बनाएगा और एक POCl3। एल्डिहाइड या कीटोन के साथ इसका रिएक्शन देखते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ इसका रिएक्शन क्या है, लेट्स से हम कीटोन से देखते हैं ना, ये PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको क्या बनाएगा, बेसिकली ये ऐसे देखते हैं, PCl3 और Cl2 ClCl, ये बाहर निकल जाएगा आपका, ये बाहर निकल जाएगा आपका, तो बनाएगा एक तो RCR- और यहाँ से 2 क्लोरीन ऐड होगा आपका, प्लस POCl3 बनाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट जो इसमें है, इसमें देखिए अमाइड के साथ रिएक्शन, अमाइड के साथ, ये अमाइड है, अमाइड के साथ PCl5 का रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डेट वाटर को निकालेगा मेरा, बेसिकली वाटर को निकाला, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या, वाटर का निकालना, तो यहाँ से बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल को निकालेगा आपको, और ये बनाएगा आपका RCl साइनाइड प्लस HCl प्लस POCl3, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है कि साइनाइड का रिएक्शन, साइनाइड से अमाइड बनाना था तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते थे ना, H2O पड़ जाता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता था मेरा, एसिड बनता था। बट अगर अमाइड है, अमाइड से साइनाइड बनाना है तो हमें PCl5 यूज करना है ना, अमाइड से साइनाइड को हम बना सकते हैं बाय यूजिंग PCl5, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे एक और बच गया, लेट्स से दिस इज अल्कोहल, और इसका रिएक्शन हम करते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2, तो हमें क्या मिलेगा, RCl मिलेगा प्लस POCl3 मिलेगा प्लस HCl मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो अब क्या करना है कि एक बार पूरा जितना रिएक्शंस हम लोग डिस्कस किए, ये सारा रिएक्शंस को एक बार आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको बनाने हैं। आई होप ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके नीट में और जेईई मेंस में, ये इजीली आपको इस कॉन्सेप्ट से आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग पढ़ते रहिए बढ़िया से ना।